फिनिश कर देंगे. So supposing I give you oxalic acid. oxalic acid डाइबेसिक होता है या मोनोबेसिक? डायबिटिक. Dibasic. Dibasic. Okay, is titrated with 1/5 m/5 NaOH. Tighter volume. Can you understand what do you mean by tighter volume? I'm trying to use new words so that question में अगर कभी आए तो तुम familiar हो पाओगे. Tighter volume of NaOH मतलब जहाँ titration finish हुआ. Can you get it now? Can you get it now? What do you mean by मतलब equivalent point पे जो yes, वहाँ volume. पे वो volume थी. So 10 sorry मैं यहाँ पे लिखना भूल गई. So it is 10 ml of oxalic acid is titrated with the tighter volume of NaOH is 25 ml. What is the weight of oxalic acid in the mixture? Oxalic acid in the mixture. तो पहले सबसे पहले ये बताओ is it an example of, क्योंकि अभी हम बहुत सारे types of titration पढ़ने वाले हैं, तो can you recognize that this will be an acid base titration? Yes, ma'am. Which can you identify this will be an acid base titration? Yes, ma'am. An unknown acid's concentration is being calculated with a known base. Yes. Okay. Is everyone able to identify it as an acid base titration? Yes, ma'am. ma'am. ओके तो एसिड बेस टाइट्रेशन में अब हमें क्या करना होगा, पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये एसिड बेस टाइट्रेशन है. फिर हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है किसकी वैल्यू गिवन है. तो किसकी वैल्यू गिवन है? Base की. तो हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन गिवन इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन अननोन, और आई कैन से ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ given quantity is equal to gram equivalent of unknown quantity. Can I write like this? क्योंकि हमें बैलेंसिंग कुछ नहीं करनी है यहाँ. Can I write like this? बोलो. Yes, ma'am. तो यहाँ unknown quantity क्या है? Base, sorry, acid. Oxalic It is acid. oxalic acid, क्योंकि देखो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा ही है calculate the weight of oxalic acid. So who is the unknown quantity? Oxalic acid. Everyone, can you follow this? And who is the known quantity? NaOH. अच्छा, अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के दो फॉर्मूलाज थे, कौन कौन से? एक था Moles into n factor and normality into volume. तो यहाँ बताओ मुझे कौन सा यूज करना चाहिए? Normality into volume. Normality into NaOH volume. के लिए नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH. ठीक है, अब तुम चाहो तो यहाँ नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यूज कर सकते हो और फिर नॉर्मेलिटी निकाल करके उससे वेट निकाल सकते हो, या फिर और ओके और Directly gram Moles into equivalence निकाल किसमें लें. n factor भी कौन कर सा सकते हैं. कौन सा फॉर्मूला था जिसमें मास आता था, वेट आएगा? Moles into n factor. Gram moles या तो into ऐसे n यूज कर factor. सकते हो या फिर मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर. कैन यू गेट इट दोनों वे में? इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा और इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, बट यू कैन फॉलो बोथ द वेज और नॉट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे बताओ क्या नॉर्मेलिटी दी है NaOH की? यहाँ तो नॉर्मेलिटी भी नहीं दी है, मोलैरिटी दी है, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर. Molarity into n factor. Yes, and then again moles into valency factor of oxalic acid. So tell me what is the valency factor of NaOH? 1. 1. 1 and of NaOH, and what will be the valency factor of oxalic acid? 2. Yes, it will be 2. ठीक है, तो बस वैल्यूज को पुट कर दो. तो यहाँ देखो क्या हम वॉल्यूम किस में रखते हैं? मैम दोनों में मिलीलीटर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, बट यहाँ पे दोनों ml वाले नहीं यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम एक लीटर में यूज कर रहे हैं और एक मास यूज कर रहे हैं, तो हमें कॉशियसली वॉल्यूम को लीटर में लेना पड़ेगा. इन दिस फॉर्मूला आई एम नॉट यूजिंग वॉल्यूम.
So will I have to take it in liters or not? Yes, ma'am. So what will it be? It will become 1/5 into वैलेंसी फैक्टर 1 है और वॉल्यूम 25, क्योंकि ये ml में है और हमने लिखा था फॉर्मूले में it should be in liter. I'll divide it by 1000 Yes, ma'am. and moles of oxalic acid into 2. Into 2. अब तुम मोल से कंसर्न्ड हो या किसी और चीज से कंसर्न्ड हो? मोल्स से, फिर उसके बाद उसको मैम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो तो ये हम गिवन लोग वेट कर लेंगे 5 upon, can I write 400 into 60 which is the molecular weight of oxalic acid. So will I get the weight of oxalic acid in acid in 10 ml solution? बोलो निकाल सकते हैं क्या वेट आ जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का? यस मैम. ठीक है, और ये यूनिट्स क्या होंगे? ये वेट किस में आएगा? ग्राम्स में आएगा. यस, इट विल बी इन ग्राम्स. और अगर यहीं पे क्वेश्चन में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न कर देती 80% प्योर ऑक्सैलिक एसिड, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 80% प्योर ऑक्सैलिक एसिड? तो बताओ कैसे करते हैं? कैसे करते? प्योरिटी वाला कैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? कैसे करते हैं? ये केवल प्योर पार्ट ही लेंगे हम लोग, वही केवल Yes. रिएक्ट करेगा. 100% प्योर था, ये जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं वो 100% प्योर की होती है, इम्प्योरिटी की होती है? 100% प्योर. मैम 100% purity की होती है 100% ना? प्योर. हाँ, तो मतलब 80% का मतलब क्या हो गया? 80% प्योर का मतलब क्या हो गया? हम 80% होगा उसका. हाँ, प्योर ऑक्सैलिक एसिड होगा जिसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन में यूज करेंगे, और प्लस 20% क्या होगी? इम्प्योरिटीज या एक्स्ट्रा वेट. ऐसे ही लिखेंगे ना? यस मैम. ठीक है, तो 20% एक्स्ट्रा होगी. तो यू कैन से हमें एक तरीके से इसका वेट ज्यादा आएगा कैलकुलेटेड वैल्यू से, या कम? जो हमारा वेट आएगा वो कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा. ज्यादा आएगा. ज्यादा आएगा प्योर. ज्यादा आएगा. हम बेसिकली परसेंटेज. पूरा इम्प्योर सब्सटेंस का निकालना है वेट. हाँ, इम्प्योर सब्सटेंस, वही तो इम्प्योर सब्सटेंस का निकालना है. तो हम परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके थे, तो हमने क्या किया था? प्योर प्योर अपॉन अपॉन टोटल इनटू yes 100. impure into 100. ओके, प्योर की वैल्यू हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं, इम्प्योर की या तो क्वेश्चन में गिवन होती है या हमसे पूछी जाती है. तो अब परसेंटेज प्योरिटी है 80, प्योर की हमने यहाँ कैलकुलेट ही कर रखी है. ये कितनी हो जाएगी? इफ आई कैलकुलेटेड 6 5 30, 3/4 ग्राम्स. देखो मैम वो 60 नहीं होता है, मैम ये 90 होता है. 90 होता है. ओके सॉरी, माय मिस्टेक. 9 5 45 अपॉन 40 करोगे तो कितना आ रहा है? 9/8 grams. Can I write like this or not? Can I write like this or not? Yes, ma'am. अब अगर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, 8 के लिए 80% प्योरिटी के लिए बोला, तो बोलो क्या हो जाएगा इम्प्योर वेट? What will be the weight of this? (90/64 grams). Can you see this? यस मैम. ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया लगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन प्रोसीड करने वाले हैं. हम कुछ रिएक्शन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या लिखने वाले हैं, हम पूरे क्वेश्चन में लैंग्वेज को 4 बार पढ़ेंगे जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि उसमें से किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है और किसकी इंफॉर्मेशन अपने को रिक्वायर्ड है. फिर उन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? व्हाट विल यू हम डू? इक्वेट कर देंगे. इक्वेट करने के बाद में डिपेंड करेगा कि हमारा फॉर्मूला कौन सा लगाना है. अगर हमसे वेट रिलेटेड पूछा गया तो कौन सा लगाओगे? मैम
वेट के रिलेशन में पूछा गया तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Number of moles into n factor. यस, और अगर हमसे वॉल्यूम या नॉर्मेलिटी के रिलेशन में पूछा गया तो? Normality into volume. And you can calculate the weight or the volume of the substance which was unknown. Can you get this much? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हम इसको बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं। अभी भी तुम्हारा होमवर्क क्या है? थर्मोकेम के क्वेश्चंस कर लो, या फिर इसको जो भी मैंने पहले तुम्हें पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लो, दोबारा से, ताकि तुम आगे की क्लास में अच्छे से फॉलो अप कर पाओ। कैन यू फिनिश विद द रिविजन? हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर एंड अदर थिंग्स? Yes, ma'am. Okay, just finish with the revision so that in the next class onwards you are able to follow this. Shall we do it till here for today? Yes, ma'am. So much exhausted you people are sounding like that. चलो ठीक है, इतना ही करते हैं आज के लिए. Okay, good night everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night, ma'am.